ये सीटेट के क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। पेपर 1 चल रहा है 2018, 1 नवंबर का पेपर है। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के बच्चों के लिए है। जो इंग्लिश में समझना चाहें वो भी समझ सकते हैं आकर। चलिए तो क्लास बिगिन करते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड एवं संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन व प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, महिला संगठन और गैर सरकारी संगठन व अन्य संगठनों समितियों की सक्रिय सहभागिता बढ़ेगी। तो शिक्षा का विकास कैसे किया जा सकता है, शिक्षा में सुधार कैसे किया जा सकता है। हाउ टू ब्रिंग चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द एजुकेशन एट द लोकल लेवल एक्चुअली, whether it is a collective responsibility of that local area as well, that villages, local areas, when all the people are collectively practicing it and bringing their participation in it actually. Fine. Till the time all people collectively don't bring their participation, whether it is local level, whether it is on the blocks people are living, fine, block pramukhs are being selected or being elected, and teachers are having all the teaching tools which should be the primary requirement, which is a primary requirement at a primary level actually. That primary requirements, that primary basic collective informations and that primary basic tools that is required to teach small kids, small children, that is needed, that should be there and that should be arranged by the government, and that is a collective responsibility at a local level by the villages as well, by the women organization, by the government organization, by the other organizations like NGO. And with these collective responsibility of all, that can bring reform in the education actually, and that bring डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। क्योंकि किसी भी सत्ता का अगर वो एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित है, इफ़ इट इज़ सेंट्रलाइज्ड and it is existing in the hand of only one person, that is called as a dictatorship for any rule, for any existing rule and powers and the regulations. And the government that is being selected in a democracy, that need decentralization of any of the power of any of the educational system, because we need a collective responsibility, we need a collective efforts of all the organization, of all the institutions for bringing reforms in the education. That is there, that is needed, and decentralization focuses on that, because if it is existing in the hand of any one of the individual, that suppose that assumed to be a dictatorship, fine, and we need a democracy and we are living in democracy. For education as well, it is signifying that there are departments, there are segments that being specified and that being signifies for each and every facts and figures. So that is there, every responsibility, duty should be signified and properly it should be maintained actually, fine. And with these maintenance and having that specific responsibility and duties that need to be follow actually, fine. एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, बाय हिज इंट्यूशंस, द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है
तो सर्वप्रथम हाँ में जवाब देगा। इफ़ इट इज़ बीइंग कॉल्ड, if any student name is being called and he is specifically called that is specific student, then he would be replying yes, fine. अर्थात वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। सो विद द हेल्प ऑफ साउंड ही इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, फाइन। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राग संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 2 से 7 वर्ष। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित स्टेजेस में बांटा गया है, तो देख लेते हैं हम लोग। पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। संवेगात्मक गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, प्राग संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था। इस प्रकार की प्राग संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि इनको मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है और इनके इंग्लिश वर्जन को भी बताया है, फाइन। तो आप उस वीडियो से भी देख सकते हैं जहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश टर्म्स भी इसके बताए हैं। राइट नाउ it is not exactly clicking to my mind actually, so let's further move on for the next question. I just carry on this segment in the next episode, fine. Yeah. भविष्य की योजना सूझबूझ की अवस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है। अब किशोरावस्था आ गई है, मतलब कि एडल्ट एज, इसमें बालक जो है अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है और वह अत्यंत भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता सामान्यतः प्रौढ़ावस्था की भी हो सकती है। तो यह प्रौढ़ावस्था में भी यही स्टेज होती है, मतलब जब आदमी प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है, तो जब वृद्धावस्था से पहले की स्टेज होती है जो 50 to 60 की स्टेज होती है, तो वो प्रौढ़ावस्था की अवस्था, या 45 कह लें, 45 से 55 की एज, तो ये हो गई आपकी प्रौढ़ावस्था की अवस्था। नोमान चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने माना है कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है। तो इनका मानना है कि भाषा का जो विकास है वो अंतर्निहित व जन्मजात खाका पहले से ही मनुष्य के अंदर होता है। तो ये भी अपने लेवल पे सही बोल रहे हैं। तो नोआम चॉम्स्की कहते हैं कि जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसका एक खाका अंतर्निहित और जन्मजात होता है, मतलब आपके इनर सोल से और आपकी इंट्यूशन से और आपके इनसाइट से आपको प्राप्त होता है, वो जन्मजात खाका होता है, जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दिया है। मतलब पहले से ही आपको पता होता है सब कुछ, बस आप यहाँ पर आके उन परतों को खोल रहे होते हैं जो गर्दे से या कह लीजिए कि परतों से ढका हुआ रहता है। वट एवर इज़ covered, you are uncovering that, fine. थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत बताया है। अधिगम का प्रयास, तो थॉर्नडाइक की बिल्ली के बारे में तो आपने पहले पढ़ा ही है, उसको भी मैंने पढ़ा रखा है आपको। प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा पूरा सिद्धांत थॉर्नडाइक का, कि उसमें एक बिल्ली इन्होंने एक पिंजड़े में रख कर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर, और बाहर जो है मछली बाउल में रख दी, तो बिल्ली उस दरवाजे को खोलने का प्रयास करने लगी जो कि बंद है। जो पिंजरा था लोहे का वो बंद था, उसमें एक बिल्ली थी, वो इधर उधर उछल कूद मचाती है। फिर अचानक से उसका पैर उस लीवर के बटन पर पड़ जाता है जिससे कि दरवाज़ा खुलना है। तो जब दरवाज़ा खुल गया, उसका पैर लीवर पर पड़ गया, तो उसे पता चल गया कि दरवाज़ा कैसे खुलता है। तो नेक्स्ट टाइम उसे एफर्ट नहीं करने पड़े, उसने अपनी भूल और त्रुटि के प्रयास के सिद्धांत से सीख लिया कि उसे ज़्यादा प्रयास अब दोबारा नेक्स्ट अटैम्प्ट में नहीं करना पड़ा। वो अब लर्न कर चुकी, अब सीखी हुई बिल्ली बन गई है वो। तो थॉर्नडाइक के भूल और प्रयास के सिद्धांत से वो सीख गई है बिल्ली कि अब उसे दरवाज़ा कैसे खोलना है। वो लीवर का बटन डायरेक्ट दबाती है और कटोरा जो सामने रखा है बाउल मछली का भरा हुआ, वो जाती है, उसे खा लेती है और अपनी भूख शांत करती है। तो इस तरह से थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक के मुख्य सिद्धांत 3 हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत,
के नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन मुख्य सिद्धांत में 3 सिद्धांत आते हैं, जो कि अभ्यास का, प्रभाव का और तत्परता का नियम है।